Namaskar and a very good evening to all our viewers, and I welcome you all to Friday at 9 with Pranami Bhagavati. Like every Friday, we come here with some remarkable, wonderful, marvelous, and very talented artists with whom we talk informal, our heart out, so that we can talk about arts, we can get to know about their passion, we get to know about the struggles they have in their course of time, the prospects they see taking it as a profession, and much more. So, Friday at 9 happens to be a live Facebook Live talk show. And I request all my viewers to please like, comment, and share so that we can grow this artistic community globally. Tonight we have the very talented Vinita Devi, who is the leading puppeteer from Assam, and she has been doing tremendously well in her field and is in one of a kind, is an inspiration for many of the talented puppeteers who dream to have their own company performing. And Binita has been doing lot many shows in collaboration with the government of Assam and also with the Ministry of Culture, government of India. She runs her own institution, Surojit Academy, and along with her husband is also a great support in this. He directs the show and he writes scripts. Mostly, he writes script for the Binita's plays. And Binita, being a puppeteer, she makes her own puppets and she does a lots of workshops all over in collaboration with Sangeet Natak Academy. And the couple has been doing tremendously well in establishing puppetry show in Assam and other places of India. So I welcome Binita Devi in our show. Binita, I welcome you to the show. Thank you for inviting me in this platform. Thank you, Pranami Bhagavati Madam, and thank you, Amrapali Magazine. Thank you very much. Thank you so much. Vinita, without taking much time, I won't take much time. The screen is all yours. Please say something about that. How did you get attracted to the puppetry thing and what made you inclined to take it as a profession? Actually, my journey of puppetry started after my matriculation. I once visit to Srimanta Sankardev Kalakshetra. There I saw puppet shows. So after watching the puppet show, I felt like learning puppets. And at Srimanta Sankardev Kalakshetra, I learned puppet. And at the time, I also learned drama in Surajit Academy. And after getting attraction to puppetry, and in 2005, I have got a scholarship, senior scholarship from Ministry of Culture. And this gives me an opportunity to continue this art form because I have got some little money, some little money. And this money helped me to make my own puppet, make my own stage, and my own show. So this is this is my journey. And okay, it is basically like a self development. You have learned on your own, you got inspired on your own, and then after whatever money you could collect from this scholarship, you thought to make it as a journey of your life, which is very inspiring. And I think you are the only lady puppeteer in Northeast, or there are other ladies into this field. Actually, there's some other ladies also involved in this platform from traditional puppet groups. But the proprietor is me. जहाँ तक कि मुझे मतलब पता है, प्रोपाइटर में मतलब पपेट को लेकर के लीड कर रही हूँ. और and many other ladies also involved in this puppetry art form. लेकिन आसाम से मुझे लगता है कि सिर्फ आप ही हो, आसाम से आप ही हो पपेट्री में.
नहीं नहीं, जो ट्रेडिशनल पपेट ग्रुप है, असम के जितने भी ट्रेडिशनल पपेट ग्रुप है, वो ग्रुप में भी लेडीज है। ऐसा नहीं कि लेडीज नहीं है, बट दे आर नॉट मैनिपुलेटिंग पपेट। दे दे आर मतलब वो लोग गाना गाते हैं, या फिर कोई डायलॉग बोलते हैं बैकग्राउंड स्टेज से, तो ऐसे वो लोग जुड़े हुए हैं। Okay, and you have been doing tremendously well because you are associating with the government of Assam and also with the government of India. और आपने बहुत बहुत काम किया है इन रिलेशन टू पपेट्री शोज। आपका खुद का एकेडमी है अभी, और आपने अलग अलग जगह पे यू हैव बीन देयर एंड यू हैव डन पपेट्री शोज। कैन यू जस्ट डिफाइन कि आप जब भी जाते हो, whenever you perform a puppetry show in front of children specifically, so what is their reaction? How do they react? चिल्ड्रन मतलब बहुत क्लोज है पपेट के साथ। जैसे कार्टून देखते हैं बच्चे और उनको पता ही नहीं चलता कि कब वो टीवी के सामने आकर खड़े हो गए हैं, उसी तरह से पपेट का भी वैसा ही है। मैंने एक प्रोग्राम किया था रीजनल साइंस सेंटर गुवाहाटी में। तभी मतलब ऐसा हुआ, एक बच्ची को मैंने बुलाया, ऐसा हाथ से मैंने उसको बुलाया, तो उसने मुझे देखा, लेकिन वो अपने ग्रैंड मदर के मतलब क्या आंचल में वो पकड़कर वो खड़ी थी। उसने मुझे देखा लेकिन वो नहीं आई, मतलब पपेट से डर गई कि वो बहुत शाय है। नहीं, पपेट से नहीं, मैंने बुलाया उसे, हाँ, तो वो नहीं आई। तो मैंने सोचा कि एक काम करते, इस पपेट को मतलब पपेट से बुलाते हैं उसको। तो मैंने क्या किया, पपेट अपने हाथ के अंदर डाल लिया और पपेट से मैंने उसे बुलाया। और जब मतलब पपेट से बुलाया तभी उसको लगा कि पपेट ने मुझे बुलाया, पपेट कॉल में। तभी उसको पता ही नहीं चला कैसे उसने मतलब ग्रैंडमदर का जो आंचल था उसको छोड़ दिया और वो धीरे धीरे पपेट के सामने आ गई और वो बातें करने लगी। तभी मतलब मैं एकदम से चौंक गई, वाओ क्या कितना अच्छा है। मतलब कैसा एक अट्रैक्शन होता है पपेट के साथ बच्चों का। और जब भी हम प्रोग्राम में जाते हैं तो एक बार उनके लिए तो ये टॉय जैसा है, एक खिलौना जैसा है। तो दैट इज द रीजन व्हाई दे गेट अट्रैक्टेड सो इजीली। तो हम जब उनसे बात करते हैं वो लोग मतलब डर जाते हैं या किसी भी कारण के वजह से वो बातें नहीं करते। लेकिन जब पपेट बातें करते हैं तो उनको लगता है कि अरे ये तो हमारे ही ग्रुप के हैं, मतलब छोटा छोटा पपेट है, तो वो आसानी से बातें करने लग जाते हैं। बिकॉज पपेट्री शोज इवन अट्रैक्ट्स एडल्ट्स को भी अच्छा लगता है पपेट्री शोज देखना। तो चिल्ड्रन को तो, बच्चों को तो अच्छा लगेगा, उनको लगेगा कि यही उनका फ्रेंड ही है, बिकॉज पपेट्स कम्स इन वेरियस शेप्स, you know, some comes in almost in life sizes, so it's quite big for them. So maybe that's a way to attract them. हमने एक बार दिल्ली में किया था रामायण के ऊपर। तभी छोटे छोटे बच्चे थे, स्कूल चिल्ड्रन आर देयर। तभी मतलब जब हमने शो किया, शो खत्म होने के बाद तो पपेट बोलता है कि जय श्री राम, तभी बच्चे भी एकदम से मतलब दे आर शाउटिंग जय श्री राम जय श्री राम ऐसे। तभी वो मतलब कैसे पपेट के अंदर घुस जाते हैं उन लोग को भी पता नहीं चलता है। Actually, it shows that puppetry shows are more socially, you say maybe viable for children, or bring a change or pass something, some messages, है ना? ये puppetry shows से actually कुछ message pass करना हो या कुछ बताना हो, तो ये बहुत इजी हो जाता है शायद बच्चों के साथ। बहुत सारे स्कूल में इसका मतलब कुछ काम भी चल रहा है, जहाँ की टीचर लोग बोलते हैं कि हाइजीन के लिए जो बच्चे नहीं सुनते हैं, तभी पपेट जब बोलता है कि अपना मतलब टीथ आप लोग को क्लीन करना है, रोज 2 टाइम आप लोग को ब्रश करना है, तभी जब पपेट बोलता है तभी बच्चे मतलब पूरा से वो लोग सुनते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं। और बहुत सारे ट्रेजिक थीम, कॉमिक थीम होता है जो कि उन लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है। Okay, that's really great. So, like, while taking it as a profession, आपको कभी डर लगा था कि because see, being an artist, if you are into art, आपको हमेशा लगता है कि आर्ट के थ्रू ही
हमें एक लाइवलीहुड मिले, प्रोफेशन सेट हो, बिकॉज दैट्स द थिंग बीइंग एन आर्टिस्ट यू लव द मोस्ट, है ना? चाहे आप गाने में हो या चाहे आप डांसर हो या यू आर पपेटियर, आपको हमेशा लगे कि द थिंग दैट यू लव द मोस्ट शुड बी विथ मी एज अ प्रोफेशन, ताकि आप 24 घंटे भी अगर आप दोगे उस काम को, आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ ज्यादा टाइम दे दिया, बिकॉज दैट इज द थिंग दैट यू लव द मोस्ट। तो आपने जब पपेट्री आपके एज अ प्रोफेशन आपने चुना है, तो कभी भी आपको ऐसा थोड़ा सा डर लगा कि हाउ यू गोइंग टू अर्न, वेदर दैट अर्निंग विल बी उतना काफी होगा कि नहीं टू पे योर बिल्स एंड ऑल? तो व्हाट वाज योर सिचुएशन? नहीं, एक तो बात ये है कि मैंने एज ए प्रोफेशन पपेट को पहले मतलब कभी भी नहीं लिया, कभी भी नहीं सोचा कि मैं इसको ही प्रोफेशन मानकर चलूंगी, इसमें ही काम करूंगी, मैंने कभी भी नहीं सोचा। मैं सिर्फ काम करती गई, जो भी काम मुझे मिलता गया मैं उसको मतलब जितना हो सके मुझसे मैं डेडिकेटेडली उस काम को करती गई। तो जब करती गई तभी और काम आने लगे, तभी धीरे धीरे से मतलब ऐसा हुआ कि मैं इसको छोड़ ही नहीं पाई और यही मेरा प्रोफेशन बन गया। तो अभी भी मुझे कभी भी डर नहीं लगता है कि ये मतलब छूट जाएगा। अभी भी ऐसा है कि इस पेंडेमिक के टाइम में जहाँ की कोई भी सोर्स नहीं मिल रहे हैं, फिर भी मुझे ये डर नहीं लगता है कि ये मुझसे छूट जाएगा या नहीं होगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो मतलब अभी पहले से तो बहुत ही ठीक हो गया है अभी। तो धीरे धीरे ये भी समय जो है, ये जो बुरा समय है ये भी खत्म हो जाएगा और हम फिर मतलब जैसे आगे का जो हमारा था, पहले जो था हमारा, वैसे ही चलते रहेगा। तो मुझे वो कभी भी डर नहीं लगता है। लेकिन ये भी बात सही है कि अभी मैं अकेली नहीं हूँ, आई एम नॉट अलोन, बिकॉज मेरा एक ग्रुप है, तो उस ग्रुप को मुझे चलाना है, तो उस ग्रुप को मुझे कंटिन्यू करना है। तो वो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम इस समय में आ गया है। फिर भी जितना हो सके हम लोग मतलब एक दूसरे के साथ मतलब कोऑपरेट करके हम लोग काम कर रहे हैं। Okay, that's really nice. So, you have taken puppetry to the children, you have taken puppetry to the adults, you have collaborated with the government of Assam, government of India, Ministry of Culture, and these are really good steps that you have already into. So, after this pandemic is over, what is your next dream projects? हाँ, मैं मतलब अभी श्रीमंत शंकरदेव जी के ऊपर एक स्क्रिप्ट लिखा है मैंने। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि ये मतलब सब कुछ ठीक हो जाने के बाद तो श्रीमंत शंकरदेव जी को पपेट के जरिए लोगों के बीच में लेकर जाऊं। तो ये एक मेरा मतलब नेक्स्ट प्रोजेक्ट मेरे हाथ में यही है। और उसके बाद मेरा जो ड्रीम है पपेट को लेकर के वो है एक फिल्म बनाओ, मतलब पपेट को लेकर फिल्म बनाओ पपेट को लेकर। फिल्म बनाओ पपेट को लेकर। तो ये एक मेरा सपना है। और मैंने पंचतंत्र की भी बहुत सारे कहानी अभी मतलब ये लॉकडाउन के समय में लिखा हुआ है। तो स्क्रिप्ट मतलब एक्चुअली क्या है, in the time of lockdown many artists have been able to complete their incomplete work, pending work, incomplete work. बहुत सारे ने कहा कि हम लोगों ने बहुत रियाज किया इस टाइम because we hardly get time. So it is like a blessing in disguise in some ways. बहुत में ऐसा मतलब जब पपेट करते हैं तभी मतलब सोचते हैं इसको अगर अलग तरीके से बनाया जाए, इसको अगर अलग तरीके से इसका काम किया जाए तो और भी बहुत अच्छा होता। लेकिन उसका टाइम ही नहीं मिलता है। ऐसा होता है कि टाइम नहीं मिलता है। तो अभी वो जितने भी थॉट्स थे मतलब वो थॉट्स को हमने अभी प्रैक्टिकली किया है। तो अलग अलग तरीके के पपेट भी मतलब बनाया है। तो अलग अलग तरीके के काम भी हम करना चाहते हैं। जो भी थॉट्स थे उसको मतलब प्रैक्टिकली अभी क्या है कर रहे हैं। तो कैन यू जस्ट लेट अस नो कि अलग अलग तरीके का पपेट्स क्या होता है? एक जैसे एक कोई शेडो पपेट है, कोई स्ट्रिंग पपेट है ना? आई जस्ट न्यू 1 or 2 बिकॉज आई वॉच्ड योर शो। आपका शो देख के ही मुझे पता लगा कि अच्छा इतना वेराइटी है। सो एक्चुअली कितना वेराइटी होता है पपेट्री शोज में? इफ यू कैन नेम देम प्लीज। पपेट्री का तो बहुत सारा वैरायटी है। फिर भी जो ट्रेडिशनल पपेट्री है, जो हम लोग का ट्रेडिशन है, इंडियन का जो ट्रेडिशन है, उसमें 4 टाइप्स ऑफ पपेट्स, स्ट्रिंग पपेट,
रॉड पपेट, शेडो पपेट एंड ग्लॉक पपेट। स्ट्रिंग पपेट जो कि स्ट्रिंग से पपेट को मैनिपुलेट किया जाता है, एंड दिस इज अ ग्लॉक पपेट। दिस पपेट इज मैनिपुलेट बाय दिस 3 finger. Okay. This puppet is manipulated by this 3 finger. I'll show you. 3 fingers मैंने आपका thumb, index and middle finger, ये 3 finger. हाँ, thumb finger, Okay. index और Okay. middle finger से इस puppet को manipulate किया जाता है, and this puppet is made from cotton, basically waste materials, जो भी मतलब फेंकने वाला चीज है उसी को हमने इसके puppet को बनाया है। So this puppet is made from cotton socks. Okay. Yeah. अच्छा. Okay. तो ये puppet तो is like, I think it is like hand puppet. हैंड पपेट भी कहते हैं इसको, और ग्लॉक पपेट भी कहते हैं। इसको ग्लॉक पपेट कहते हैं, और एक है हैंड पपेट जो कि डायरेक्ट हम लोग का हैंड जो है वो निकलता है। इसमें स्ट्रिंग नहीं चाहिए है ना? स्ट्रिंग नहीं चाहिए, इसको आप अंदर से ही घुसा देते हो है ना? ओके, सो इट्स लाइक वेयरिंग अ ग्लव्स, बेसिकली कोई ग्लव पहना हुआ है एंड यू आर मैनिपुलेटिंग द पपेट फ्रॉम इनसाइड। ओके, यस, हाँ। और ये जो है दिस पपेट इज शेडो पपेट। ओके, दिखाना थोड़ा मुश्किल होगा। जस्ट सम जीस मेड फ्रॉम लेदर। ये लेदर का बना हुआ है। ओके, ये लेदर का बना हुआ है। बहुत सारे प्रोसेसिंग है इसमें। और इसका जो दिस पपेट, दिस इज शेडो पपेट। क्या नाम है? शेडो पपेट। ओके, ये है शेडो पपेट है। तो शेडो पपेट का जो यूटिलाइजेशन है, हैंडलिंग है, वो हमेशा नीचे से होता है। हाँ, ये नीचे से होता है। नीचे से नहीं, मतलब हम लोग पीछे रहते हैं और एक व्हाइट जो कपड़ा है वो आगे रहता है। जी, एक जो ऐसा एक स्ट्रिंग पपेट है उसका तो हैंडलिंग ऊपर से होता है ना, स्ट्रिंग का, लेकिन इसका हाथ का आपका नीचे आपको रखना है। हाँ, इसको नीचे नहीं, हमारे फ्रंट पे रहने से भी कोई बात नहीं, लेकिन इसके आगे से एक व्हाइट कलर का पर्दा होता है, कपड़ा होता है आगे से, और बैक साइड से इसको लाइट इसमें लगाया जाता है, तभी ये पपेट को हम लोग, जैसे रॉड पपेट हो गया या ग्लॉक पपेट जो मैंने अभी दिखाया, उसको जैसे हम लोग पूरा फ्रंट से पपेट को ही देखते हैं, लेकिन इसको पपेट को नहीं देखते, सिर्फ इसका शेडो हम लोग को दिखाई देता है, मतलब ऑडियंस को सिर्फ इसका शेडो दिखाई देगा। और क्योंकि ये लेदर का बना हुआ है, तो इसके लिए इसका जो कलर है वो कलर भी वो आ जाता है, ये ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं आता है, इसका कलर भी आ जाता है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। ओके, ये ट्रांसपेरेंट है। और जो मैंने बताया कि रॉड पपेट, ये यहाँ पर है, यहाँ मेरे पीछे है। ओके, रॉड पपेट। रॉड पपेट, इफ यू कैन प्लीज शो अस, आप दिखा सकते हो रॉड पपेट? Okay, so this is quite big. Yes. इस पपेट को जो आपने बताया कि नीचे से होता है, ये पपेट होता है नीचे से। ओके, दिखाई दे रहा है? हाँ, नहीं, पपेट आप कैसे हैंडल करते वो देखना है। ओके, अच्छा। वो इस पपेट को नीचे से, मतलब इसका ये जो रॉड है, एक रॉड है जो कि पपेट को होल्ड करने के लिए बना हुआ है, एक रॉड है जो इस पपेट को हम लोग होल्ड करते हैं, और ये एक रॉड है जो छोटा वाला, उसको घुमाने से इसका हेड मैनिपुलेट होता है। अच्छा, ओके, इसका हेड मैनिपुलेट करने के लिए ये जो नीचे का ये ओके, घुमाने के लिए, ओके, अच्छा, ओके, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। के लिए भी 2 रॉड लगे हुए हैं, दो रॉड है हाथ में भी, इसका हाथ का मूवमेंट के लिए। ओके। एंड दिस पपेट इज मेड फ्रॉम प्लाईबोर्ड। इसका जो बॉडी है ये प्लाईबोर्ड और कॉटन से बना हुआ है। ये बहुत पुराना है, ये मैंने फर्स्ट में ही बनाया था जब मैं श्री मंदिर शंकरदेव कला क्षेत्र में पपेट्री सीख रही थी, तभी का ही है, 2005-06 का ही है ये पपेट।
Okay. लेकिन अभी जितने भी बनाया ये थोड़ा हैवी है, तो मतलब वही देख क्या के था कि लगा हम लोग का because हाथ एकदम से yeah, लगा क्योंकि एकदम से because दर्द rod करने वगैरह लग को जाता है। yeah, the puppet is also हाँ quite big in हाँ size. Okay. So हाँ, you तो teach all these हमने technical things, how to make and all in your institution? हाँ हाँ, यस यस, इसको कैसे बनाया जाता है, हाउ टू मेड, हाउ टू मैनिपुलेट एंड डायलॉग वगैरह कैसे बोला जाता है, और इसका मतलब प्रेजेंटेशन कैसे होता है, सब कुछ मतलब It's very interesting. सिखाया जाता Yeah, है। it's very nice. हाँ, Okay. 1 years का कोर्स है। 1 year का है. हाँ हाँ, 1 year का. 1 year Okay. का Okay. कोर्स है। Okay. Okay. So, like from your institute only, you give the course to the interested students. हाँ 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 Okay. Okay. हाँ, आते हैं ठीक है. बहुत सारे बच्चे, छोटे भी और बड़े भी, मतलब हाँ. कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, वो भी आते हैं, और छोटे बच्चे भी आते हैं। छोटे बच्चों के लिए, उन लोग के लिए थोड़ा अलग सा है। उन लोग को पेपर हाँ. का पपेट, या पेपर बैग का पपेट, या कपड़े का पपेट, ऐसा पपेट उन लोग को सिखाया जाता है, जो कि उन लोग के लिए आसानी से वो बना भी सके और उसको वो मैनिपुलेट भी कर सके। अच्छा. और जो So, बड़े हैं स्टूडेंट, हाँ. आपने बड़े तो हैं, अलग तो अलग उन you have लोगों के लिए ये सब सिखाया जाता है। you have already performed at various levels. You have performed at the school level, and you have also performed on good occasions also. So, what do you see the future of puppetry in Assam, specifically in Assam? Because in many places, what happens in cosmopolitan cities, Bombay ho, Delhi ho, even Kolkata or Bangalore, so people ticket खरीद के देखने जाएंगे, be it a puppetry show or a vocal singing show or a dance choreography, because people are tend to spend a ticket for artistic thing. वो देखने जाएंगे ticket खरीद के. But what situation do you see in terms of puppetry? कि will people buy ticket to watch a puppetry show in Assam? हाँ, देखने आते हैं। मैंने मतलब बहुत सारे ऐसा भी मैंने प्रोग्राम किया है जहां पर मैंने टिकट शो रखा हुआ है, तो टिकट मतलब खरीद के भी आते थे लोग, This टिकट is खरीद actually के भी this आते is थे, actually लेकिन a very good this is actually a very good thing, कि टिकट खरीद के लोग देखने आए, because every time when you get some artistic show for free, तो कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों का मेंटेलिटी ही ऐसा हो जाता है कि नहीं, ये तो फ्री होना चाहिए। वेरएस थिएटर जहां भी होता है, आसाम का जो भी थिएटर्स होते हैं, पीपल बाय टिकट्स 500 रुपीज, इवन 1000 रुपीज तक के भी टिकट खरीद के लोग देखते हैं। सो इफ वी कीप ऑन हैविंग दिस व्हाट यू से regularly ticket shows, I think that will really boost the energy of the artist and the organizers to have ticket shows more often, क्योंकि खर्चा भी होता है, कि अगर आपको कोलैबोरेशन में नहीं मिला है, गवर्नमेंट के साथ आपने कोलैबोरेट नहीं किया, अगर नहीं मिला, इफ इट्स योर ओन शो, तो ऑडिटोरियम का खर्चा होता है, देन रिफ्रेशमेंट्स के खर्चे होते हैं, आपके रिहर्सल्स के भी खर्चे होते हैं, एंड मेकिंग पपेट्स एंड ऑल दिस टेक्निकल थिंग्स आल्सो कॉस्ट मनी. सो आई थिंक, आई पर्सनली फील दैट if we have too many ticket shows, it is beneficial, because now the society needs to understand that these things are not for free, and these things, if you need to watch, it has to have some monetary value. हाँ, आते हैं। मैं आपको बता दूं कि एक तो ग्रुप है नौगांव में, तो उन लोग का ऐसा है कि उन्होंने मुझे दिखाया था, एक टिकट का दाम मतलब 1200 देकर भी पपेट शो देखने को आए हैं। 1200, आप कैन यू इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हैं, तो इतना मतलब देकर भी वो पपेट शो देखने को आए हैं। तो अभी भी इसका फ्यूचर मतलब बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग उसको कैसे ले जाए ना आगे, तो इसलिए मैं मतलब अभी की जो न्यू जनरेशन जो बच्चे हैं, तो उन लोग को इन्वॉल्व कर रही हूँ, ताकि उन लोग का जितना भी मतलब नया नया काम जो है, तो वो लोग अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो इसीलिए उन लोग का इन्वॉल्वमेंट मतलब इस पपेट की आर्ट को अगर हम लोग को रिवाइव करना है,
और इसको अगर हम लोग को प्रिजर्व करना है, इसको प्रमोट करना है, तो उसके लिए वो जो है यूथ जो है उन लोग को इस आर्ट फॉर्म में उन लोग को आना चाहिए, और इसका बहुत अच्छा फ्यूचर है। लेकिन मतलब अभी तक लोगों को समझ में नहीं आया है, क्योंकि ऐसा है कि because people also need to be creative in making a traditional thing more commercial. Because now it's a competitive time, आपको commercial होना ही पड़ेगा. And secondly, like places like Jaipur, Jaipur में तो जो भी puppetry shows होते हैं, it's a part of the tourism. हाँ 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 है ना, टूरिस्ट लोग आते हैं जो शोज देखने के लिए. या हाँ, टूरिज्म आते हैं, और उन लोग का ऐसा है कि उस पपेट को वो लोग बहुत अच्छी तरीके से मेकिंग भी करते हैं, उन लोग को सेलिंग भी करते हैं. सेलिंग भी करते हैं. या मैंने खुद खरीदा है एक जोड़ी जयपुरी पपेट्री, मैंने खुद खरीदा है जब मैं जयपुर में गई थी. सो दिस थिंग्स हैज टू टेक अ वे beyond performance. It has to be a souvenir, it has to be a gift item. So ये सब commercialization is very important in this existence of these things. पहले जो मेरा था कि ऐसा था कि मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ता था किसी को कि 100 दे दीजिए दुर्गा पूजा में या काली पूजा, जो यहाँ जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं वहां पर पपेट शो होता है, तो मतलब कमिटी में जाकर के रिक्वेस्ट करना पड़ता था. जो मैं एकदम बिगिनिंग का बात जो मैं बता रही हूँ, क्योंकि मुझे स्कॉलरशिप मिलता था, उससे तो मैं पपेट बना ही लेती थी, मेरा स्टेज भी था, सब कुछ था, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं था. मैं कहाँ जाकर के उसको परफॉर्म करूँ. गांव में तो वो हो ही जाता था, लेकिन यहाँ गुवाहाटी में, यहाँ टाउन में थोड़ा मुश्किल ही था. तो मुझे मतलब जा जाकर उन लोग को रिक्वेस्ट करना पड़ता था. और अभी ऐसा है कि वो हमें रिक्वेस्ट करते हैं, और कभी ऐसा होता है कि हमें टाइम ही नहीं मिलता है उन लोग को टाइम देने के लिए. तो इसलिए मतलब कि ऐसा है कि हम इसको किस तरफ ले जाए, हम इसको कैसे प्रेजेंट करें, उसके ऊपर डिपेंड करता है इसका सरवाइव ये कैसे करेगा, या कितना ये सरवाइव करेगा. बिल्कुल, क्योंकि आप whatever you're doing now, you are responsible for your students also. कि since आपने उनको सिखाया है, now you have to also show them the way कि इसको कैसे survive किया जाए, and how you can also survive with this taking up as a profession. So being a teacher and a performer, you have got two responsibilities now. कि you are making your performing art survive, and also showing equally important ways to your students, which is really incredible that you're doing. So now anything else that you want to include in the show? आपको कुछ और बोलना है? Because we have really talked important things. If you want to talk for the upcoming generation, or if you have some ideas. यस जी हाँ, अभी मतलब मेरे ग्रुप में हम लोग 12 है, तो 8 हम लोग ऐसे मतलब पर्सन है जो कि मतलब कंटिन्यू हम लोग काम कर रहे हैं, तो इस आर्ट फॉर्म में. तो अभी न्यू जनरेशन को मैं यही बताना चाहती हूँ कि मतलब वो लोग पपेट्री में वो लोग आ जाए, और आ भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो लोग नहीं है, क्योंकि मेरे जो ग्रुप में वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि साइंस बैकग्राउंड से है, कॉमर्स बैकग्राउंड से है. तो ये है जो ऐसे भी है जो कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में रिसर्च भी कर रहे हैं, वो उन लोग का भी मन है कि वो भी पपेट में आए और कुछ अलग कुछ करे, इसको सीखे. तो अगर वो लोग इस पपेट्री को सीख जाए तो पपेट्री एक अलग ही लेवल में पहुंच जाएगा, जो कि हम लोग इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे कि हाँ पपेट्री ऐसा भी हो सकता है. तो उन लोग को मतलब इंक्लूड करना, बच्चों को इंक्लूड करना, वो तो बहुत ही जरूरी है. तो पहले जो है कि मुझे भी लोग ऐसे कहते थे कि अरे क्या आपने क्या चीज सीख लिया, पपेट सीख लिया, आप लेडी होकर के आप पपेट करती है, ऐसे बताते थे. लेकिन वही सेम लोग अभी मुझे बताते हैं कि आपका तो मतलब भाग्य ही बहुत अच्छा है कि आपने पपेट को एज ए प्रोफेशन चुन लिया.
क्योंकि कोई भी नहीं है इस प्रोफेशन में इसको करने के लिए, तो चांस तो आपको ही मिलता है, तो ऐसे बात करते हैं। लेकिन जो लोग पहले बताते थे कि क्या किया आपने, वही लोग अभी बताते हैं कि वाह आपने कितना अच्छा काम किया। तो मतलब कि ऐसा बात सुनने से अच्छा लगता है कि हाँ कुछ तो किया होगा जिसकी वजह से वो लोग मतलब ऐसे बात करते हैं। तो वही बात मैं बताना चाहती हूँ कि हम लोग कैसे इसको प्रेजेंट करते हैं, कैसे इसको परफॉर्म करते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे बात डिपेंड करता है। हम लोग जैसे परफॉर्म करेंगे लोग वैसे ही इसको लेंगे और वैसे ही इसको देखेंगे। इसलिए हाँ ये भी ठीक है कि पपेट्री में ज्यादातर माइथोलॉजिकल प्रोग्राम्स वगैरह ही होता है, लेकिन रामायण को भी दिखाना चाहिए। लेकिन रामायण को हम लोग प्रेजेंट कैसे करें, उसको और एट्रैक्टिव उसको कैसे बनाए, पपेट को और एट्रैक्टिव हम लोग कैसे बनाए, तो इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान में रख करके काम करना चाहिए। जैसे कि मैंने रामायण में एक साथ मैंने आपका स्ट्रिंग पपेट और फिर डिस्कनेक्ट हो गया क्या? नहीं, हेलो, डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, आपका फोटो नहीं आ रहा है। योर फोटो इज नॉट कमिंग, योर वॉइस इज कमिंग। तो फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। प्लीज मतलब कंटिन्यू, प्लीज हाँ कंटिन्यू। हाँ, जब मैं तो रामायण में मैंने स्प्रिंग पपेट को भी इंक्लूड, स्प्रिंग पपेट से ही पूरा रामायण को मैंने किया, लेकिन उसमें मैंने शेडो पपेट को भी इंक्लूड किया, ताकि एक अलग तरीका का टेस्ट मतलब ऑडियंस को आ जाए। और फिर उसमें मतलब फोक सॉन्ग्स वगैरह भी इसको भी मैंने रखा, क्योंकि ये तो पपेट का एक मतलब ट्रेडिशन है, जो कि पपेट शो में फोक होते हैं और ड्रामा भी माइथोलॉजिकल ही लिया जाता है। तो ट्रेडिशन को भी बरकरार रखना और फिर जो अभी का जो हम लोग का एनवायरनमेंट है उसके साथ भी, उसके साथ साथ ही चलना। तो इस दोनों चीजों को ध्यान में रख करके मैंने जितना भी शो किया है इन सब चीजों को मैंने ध्यान में रख करके किया है, क्योंकि हम लोग का I think there is some technical problem. Yeah, Vinita, can you hear me? हाँ 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 Okay, ठीक है. Yeah, please continue. सुन रही हूँ। हाँ तो फिर इस दोनों ही चीज को मैंने ध्यान में रख करके जितना भी परफॉर्मेंस मैंने किया है इस चीज को हाँ, मैंने ध्यान में रख करके किया है, और नया कुछ इंक्लूड करने का मैं मतलब कोशिश कर रही हूँ, ताकि अभी की जनरेशन के जितने भी बच्चे हैं उन लोग को मतलब पपेट्री उन लोग को एक अट्रैक्शन देने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ। that's very nice. So that was Binita Sharma, and we have already got to know a lot about her, how she has been doing tremendously well in the field of her puppetry, how she was inspired by visiting and witnessing a puppetry show. उसके बाद उन्होंने खुद ही किया सभी काम after getting a scholarship, most importantly. And I think the scholarship has boosted your spirit कि you have to do something with this Yes. puppetry thing, है ना? हाँ यस, मुझे 2005 में तो जूनियर फेलो सीनियर स्कॉलरशिप मिला था, उसके बाद 2011-12 में भी फेलोशिप मिला था, जूनियर Okay. फेलोशिप मिला था, और अभी मैं टैगोर फेलोशिप का काम कर रही हूँ मिनिस्ट्री ऑफ Very कल्चर nice. के अंडर में। और सभी का मतलब सपोर्ट है, मैं काम कर रही हूँ, और प्राइम मिनिस्टर जी से भी मुझे एक एप्रिसिएशन लेटर मिला था, जिस ये सभी बात है जो कि हमें मतलब बूस्ट करती है Boost इस करते, very important. Yes, कल्चर yes. को कंटिन्यू करने के लिए। Okay, Binita Sharma, thank you so much for coming to our show and giving an insight to all the beautiful and inspiring things that you have been doing. We have been really honored to have you in our show tonight. And I really thank all the viewers who have been watching us and making Friday at 9 really interesting, and keeping us intact with all the good artists to bring them over here and let them explore their own passion and dimensions related to the performing arts. So here we really
thankful to Binita Devi, who has come up to the show and expressed her professional and personal love for the puppetry. And to all the viewers, this live talk shows happens to be uploaded in our YouTube channel, and also it goes uploaded in our podcast. We have a very good numbers of listeners in our podcast from different countries, almost like 12 to 13 countries. We have got listeners to our podcast. This interview will also get uploaded there, and we will be having a very good set of interview to be published soon in our Amrapali magazine.online, which happens to be a digital magazine for arts, culture, and heritage. So, Binita, thank you so much for coming to our show. And I really thank you for making tonight wonderful with your lovely puppets and the inspiring story. Thank you so much. And to all the viewers, thank you so much. Yeah, next Friday, we are going to come with another interesting artist on the show. Till then, thank you. And please do not forget to like, comment, and subscribe Amrapali Magazine for the benefit of arts and culture. Thank you so much. And if you know anybody who has been doing tremendously well in the field of art, you can go to this mentioned link, amrapalimagazine.online/book.online. You can go there and you can book a slot by putting the name of that artist, and we will revert back to you, and we will be very happy to have that artist on our show. So please move to this online link, and if you know anybody who is doing tremendously well in their artistic profession, please do let us know. So without speaking much, because we have expressed a lot in our show tonight, we hope that you will come online again next Friday for our invited guest, another one that we'll be having in our show. Thank you, and have a very good night. Thank you.